Today Lakshita Mittal, your friend as well as your teacher, is here to start chapter 1 of English, First Flight, A Letter to God. So, in this chapter, we will talk about a farmer, Lencho. Lencho is a hard-working farmer who grows a crop named corn crop, and he grows the crop, and he was waiting for the rain. When he was waiting for the rain, what happened? He saw that on night the clouds are arriving, and he thought that today it will rain. Absolutely. Then what he saw that after some time it starts raining, and it was good rain. Then he was very happy, and means he was very glad that it rained. But the thing was that it rained first, it was a dizzy, but after some time it became hail, and the hailstones became falling. So when he saw that the hails are falling, his children were playing in the ground, and his house was at the crest of a low hill, and from there he could see the field of his. So when he saw that it's raining heavily and the hailstones are also falling, his children collected all the hailstones. Means most of the hailstones were collected by his children. They were collecting the hailstones, and they were like white pearls. Pearls means moti. So they collected the pearls, and Lencho was very sad, and he was like that what happened to his field. And then what happened? He was very sad. His wife was preparing the supper. Supper means the dinner, and dinner, which we say, is the heaviest meal. Okay, so this was the thing I want to tell you. I will tell you this more clearly when we will start reading the chapter. This I am giving you the summary. So I told that he was very sad when the hailstone destroyed his field, and then his all the years, what I could say, his all years crop and money all was wasted. So what he did, he wrote a letter to God, because he has only one hope, and that was the hope of God. And the God was only one who could help him. So he wrote a letter to him and posted in a post office. When the postman read the address was what? Address was to God. Address was to God. So what happened? The postman started laughing that what's this man? He has written the letter address to God. He took that letter and take it to the postmaster. Postmaster was the head of the post office. So what happened? He took that letter, and the firstly postmaster started laughing that haha, what's this joke, and that a person has written a letter to God. Is he serious? He was like that. Then what happened? The thing happened that then he suddenly became serious, as he was very shocked that a person would have such faith on God. Yes, and he was very surprised. So he thought, he was a very kind-hearted man, so he thought that he will collect the pesos that the farmer, the Lencho, asked, and Lencho asked 100 pesos from the God. Now what he did, he collected the money from his employees, his friends, and he himself put some contribute to the money, to the charity which he wanted to do. So
he was only about to collect 70 pesos, and that was also a good amount of money. But there is an irony in the situation. Irony क्या होती है? Irony वो होती है जब वो कोई काम किया गया हो पर बंदा उसको कुछ अपोजिट ही ले रहा हो। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे जो चैप्टर में ही है। सो व्हाट हैपेंड, जब उसने 70 पेसोस रख दिए उसमें और फिर उसका नाम लिख दिया फ्रॉम गॉड, फिर आ गया फ्रॉम गॉड कि वो गॉड ने भेजा है लेटर। सो फिर क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि लंचो आया संडे को, उसको संडे को मतलब टाइम मिला और वो टाउन में था क्योंकि पोस्ट ऑफिस वहाँ पे जहाँ वो रहता था वो तो हिल एरिया था तो वहाँ नहीं था। सो ही वेंट टू द टाउन एंड कलेक्टेड हिज लेटर दैट वेदर द गॉड हैज सेंट हिम और नॉट। सो व्हेन द what we could say, the person who sits on the who cuts or gives the checks and all for letters, the person, what I could say, post office employee, post office employee. So the post office employee, he asked from the post office employee to give him the letter which the answered letter of God, that what is God answered to him. So he gave him the letter and he was not happy to get the letter, as he is complete faith of God that yes, definitely the God will send him the letter. So when he got the letter, he was very angry to see that there was only 70 pesos in that, as he had asked of 100 pesos. A person has asked for 100 pesos and got 70 pesos. He was very angry to see that. But what then he saw? Then the postmaster was seeing from behind that what would be the reaction of this. Then he took some papers and pens from the post office employees who used to sit on the desks for the collection and giving of the letters. So he wrote a letter to God again, that God, I am very thankful that you have given me the money, but it's not sufficient for me. I asked you 100 pesos, but you sent only 70 pesos. This is not the right thing. And now please don't send the money through post office. You send it through some other thing और कहीं और से भेजिए उसे, क्योंकि these employees, the post office employees are a bunch of crooks. मतलब ये अच्छे नहीं है, इन्होंने ही पैसे चुराए हैं, उसका कहने का मतलब ये था। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इसमें आयरनी क्या है? इसमें आयरनी ये है कि मदद किसने की? मदद की थी पोस्टमास्टर और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्टमास्टर के फ्रेंड्स ने। बट व्हाट द लेंचो थॉट, what did Lencho thought? Lencho thought that the people who are in the post office are only the crooks which have stolen the money. They are the thieves who have stolen the money, and he was very angry for this act and he asked God not to send this money. This is the irony in the situation. This is asked many times in the exam, and please remember it. Now मैंने आपको अभी इंग्लिश में समझाया, अब मैं आपको लाइन वाइज चैप्टर पढ़ के हिंदी में सारा समझाऊंगी। ये मैंने इंग्लिश में इसलिए समझाया जिससे आपकी वोकैबुलरी भी बढ़े, ठीक है? क्योंकि हमें अपनी वोकैबुलरी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। वी शुड नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनीवन, बिकॉज टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, नॉट ऑफ एनी अदर लैंग्वेज मोस्ट. सो everyone wants English as the preference. So please improve your English with me. So let's start the chapter line by line. So before you read, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question the story delicately poses. इसमें क्या कहा है? They say, वो कहते हैं कि faith मतलब विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है.
बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, हम अपना फेथ किस में रखें? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, यही वो प्रश्न है जो ये स्टोरी पूछ रही है. सॉरी. लेंचो इज अ फार्मर. लेंचो क्या है? एक फार्मर है. Who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. क्या है? लेंचो एक फार्मर है जो एक लेटर लिखता है गॉड को when his crops are ruined, जब उसकी क्रॉप्स खराब हो जाती हैं. Asking for 100 pesos. कितने pesos? 100 pesos. Does लेंचो लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का लेटर जो है वो गॉड को पहुंच जाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या गॉड उसे पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी. आप सोचिए कि इन क्वेश्चंस का आपके क्या आंसर होंगे एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. एंड अब देखते हैं कि अब स्टोरी कैसे बिगिन होती है, उससे पहले हम स्टार्ट से पहले देखते हैं. सो कम ऑन द पेज नंबर 3. वी वुड स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड दिस एक्सरसाइज वी विल डू some other time. Okay, after completing all the syllabus, then we will do this exercise. So the house, the only in the entire valley, the only house in the entire valley, पूरी वैली में, पूरी वैली मतलब जो पहाड़ों से छोटी होती है वो वैली होती है, और पूरी एक वैली में उनका एक सॉलिडेयर हाउस, सॉलिडेयर मतलब सिंगल, एक ही हाउस था. sat on the crest of a low hill. crest मतलब top. see, it's a valley, and in this valley, on this crest, there is only one house located. Okay, this is a solitary house, and this is the on the top of the hill, crest of the hill. So from this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. और इस हाइट से यहाँ बहती हुई नदी और वहाँ पे जो कॉर्न की राइप्ड फील्ड थी वो हमें दिखती थी. कॉर्न मतलब भुट्टा, which we know in Hindi. ओके, अब इन पे फ्लावर्स भी थे बहुत सारे. ओके, यू अंडरस्टूड बाय द डायग्राम. जो हमेशा एक गुड हार्वेस्ट प्रॉमिस करती थी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर, एटलीस्ट अ शावर. बस एक ही चीज़ जो वहाँ की धरती मांगती थी वो क्या थी? डाउनपोर. डाउनपोर मतलब बारिश, चाहे हल्की बारिश हो कैसी बारिश हो, बस वो बारिश मांगती थी. ठीक है, और एटलीस्ट अ शावर, हल्की बारिश भी जो होती है वो भी वो मांगती थी, चाहे कुछ भी दे दो उसे. The only thing the earth needed was a downpour, at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew these fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Sorry, I told you the western direction. It's the northeast direction. Okay. The only thing the earth needed was a downpour, at least a shower. Throughout the morning, लेंचो, पूरी मॉर्निंग लेंचो who knew, जिसको पता था, his fields intimately had done nothing, कि उसके फील्ड्स में कुछ नहीं किया है, else but see the sky towards the north east. मतलब उसकी फील्ड्स के ऊपर कोई बारिश नहीं हुई है, तब भी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखे जा रहा है. ठीक है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन किससे कह रहा है? वो अपनी वाइफ को कह रहा है. सो वो जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है तो वो क्या कह रहा है? हाँ, बारिश आने वाली है. ठीक है. अब वो फिर देख के फिर वो खुश हो रहा है कि यस, इट विल गेट अ रेन टुडे एंड द कॉर्न्स विल राइप गुड. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर. सपर क्या होता है? जो नाइट का खाना होता है. हम वैसे डिनर कहते हैं, डिनर नहीं होता है. डिनर वो होता है जो हमारी सबसे हैवीएस्ट मील होती है पूरे डे में. ठीक है. सपर रात का खाना. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग द सपर रिप्लाइड, मतलब जो वुमेन रात का खाना बना रही थी वो उसने रिप्लाई किया.
यस, गॉड विलिंगली, यस, कि भगवान ज़रूर से ही द older boys वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े बेटे थे वो खेत में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house, और जो छोटे वाले बच्चे थे उसके बच्चे नियर द हाउस खेल रहे थे। Until the woman called to them all, जब तक वुमेन ने उन सबको बुलाया, कम फॉर डिनर, उन्होंने क्या, उसकी मम्मी ने क्या कहा, कम फॉर डिनर, खाने मतलब खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, वो खाना खा ही रहे थे, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने जैसा सोचा था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिंस टू फॉल, मोटी मोटी बूंदें पड़ने लग गई अब। It's going to rain. Yes. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. Northeast से बड़े बड़े clouds आते हुए दिखाई दे रहे थे। The air was fresh and sweet. हवा अच्छी और साफ और मीठी मीठी सी हवा थी। The man went out for no other reason than have the pleasure of feeling the rain on his body. तो जो लेंचो था वो बाहर गया, नो रीज़न, उसका कोई रीज़न नहीं था, नो अदर रीज़न, मतलब उसके अलावा कोई रीज़न नहीं, कि प्लेजर ऑफ फीलिंग रेन, उसको हाथ पे पैर पे बारिश का एहसास करना था, ठीक है, ऑन हिज बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो उसने बताया, उसने एक्सक्लेम किया, दे आर अरेंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये कोई रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से गिर रही हैं, ये क्या है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces, 10 cent pieces मतलब इट्स अ करेंसी, 10 cent pieces, करेंसी ऑफ सदर्न अमेरिका। और लैटिन अमेरिका वाले से, लैटिन अमेरिका, ओके। ये क्या है, बिग ड्रॉप्स आर, बिग वाली क्या है, बिग वाली, ये है बिग वाली, और स्मॉल वाली क्या है, स्मॉल रेन ड्रॉप्स, द लिटिल वंस आर 5, स्मॉल क्या है, 5 cent pieces, currency of Latin America. So, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. उसने एक satisfied मतलब एक सहमति के एक्सप्रेशन के साथ उसने रिगार्ड किया फील्ड को विद द राइप कॉर्न ऑफ विद फ्लावर्स से, कि ड्रैप्ड अ कर्टन ऑफ रेन, जो फूलों से लदी हुई इसकी खेत है वो किससे, कर्टेन ऑफ रेन से कवर्ड हो चुकी है, ठीक है, पर्दा हो गया एक, जैसे क्या कहते हैं, एक ढकाव हो गया उसका चीज़ का, रेन का। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन्स टू फॉल, और एकदम से क्या हुआ, एक जोर की हवा चली एंड विंड बिगिन टू ब्लो, और विंड ब्लो करने लगा, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल, एंड रेन के साथ बड़े बड़े हिलस्टोन्स फॉल होने लग गए। अब क्या होगा, These truly did resemble new silver coins. अब तो ये क्या रिजेंबल कर रहे थे कि ये तो नए सिल्वर कॉइन्स हैं। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. अब जो एक्सपोज कर रहे थे अपने आप को, मतलब अपने आप को रेन में दिखा रहे थे कि यस, अपने आप को उसमें मतलब मिक्स कर रहे थे उसके एनवायरनमेंट में, तो वो बाहर भागे जल्दी से और क्या करने लगे, वो फ्रोजन पर्ल्स मतलब हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने लगे।
इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ. अब तो ये बहुत ही बेकार होता जा रहा है. एक्सक्लेम द मैन. एक्सक्लेम किसने किया? लेंचो ने. आई होप इट पासिस क्विकली. मैं होप करता हूँ, या क्या कहेंगे, आशा करता हूँ कि ये जल्दी से निकल जाए, क्योंकि इससे तो हमारे खेत खराब हो सकते हैं. जो भी हमने इतनी मेहनत से उगाया है वो सब खराब हो जाएगा. It did not pass quickly for an hour and hail rained on the house. ये आधे घंटे तक, सॉरी, एक घंटे तक बारिश होती रही घर पर भी, उनकी जो क्रिस्ट पर हाउस था उस पर, एंड वो गई ही नहीं. द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. वो जैसे गार्डन जो था इनका ऊपर, ये कॉर्नफील्ड थी, घर था, ये नदी, मतलब हर जगह पर्ल्स ही पर्ल्स, मतलब हिल स्टोन्स हो गए थे. द फील्ड वॉज वाइट. अब उनकी जो ये फील्ड है ये कैसे हो गई वाइट? क्योंकि वो किससे ढक गई थी? हिल स्टोन से. एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. ऐसा लगा जैसे नमक बिछा रखा हो सारे में. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. जो ये इसके पौधे थे इस पे एक भी पत्ता नहीं रहा. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. जो ये कॉर्न लग रहा था ये सब बर्बाद हो गया. ऑल वैनिश्ड. सब ढक गया, सब बर्बाद हो गया. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. जो इन पे फूल आ रहे थे ये सब भी चले गए. Nothing remained. Lencho's soul was filled with sadness. उसकी जो आत्मा है वो किससे भर गई? दुख से भर गई. ठीक है. When the storm had passed, जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field and said to his sons. वो खेत के बिल्कुल बीच में खड़ा हो गया लेंचो. ठीक है. और अपने बच्चों को कहा, अपने लड़कों को कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट हुड. लोकस्ट क्या होते हैं? लोकस्ट होते हैं टिड्डे. अब मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ इसका मीनिंग. इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स. टिड्डे भी होते हैं जो बड़े झुंड में जाते हैं. ग्रुप एंड कैन डिस्ट्रॉय क्रॉप्स. और वो खेत खराब कर देते हैं, क्रॉप्स खराब कर देते हैं. अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. कि एक स्वॉन ऑफ लोकस्ट, एक जो पूरे झुंड है लोकस्ट का, वो इससे ज़्यादा छोड़ देता. इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. हेल ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमारे पास कोई भुट्टा नहीं होगा, कोई कॉर्न नहीं होगा. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. वो एक बहुत दुख भरी रात थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. ये जो हमने पूरे साल इतनी मेहनत करी वो किसी काम की नहीं रही. ठीक है. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके. वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर. इस साल हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली. बट इन सबके हार्ट्स में, जो मिडल ऑफ द वैली के मिडल में एक हाउस पे, सॉलिटरी हाउस में रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप. दैट वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड. ओनली द पर्सन, ओनली इट्स अ soul. God is a soul. So only the thing, or only something that could help Lencho and his family was the help from God, nothing else. So don't be so upset even though this seems like a total loss. इतने आप दुखी मत होइए, इतना अपसेट मत होइए. हाँ, जबकि लग रहा है कि अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है और बहुत बड़ा लॉस है, टोटली लॉस्ट है. ठीक है. तो इतना भी दुखी मत होइए. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी भूख से नहीं मरता. ठीक है. दैट व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर.
ठीक है, वो सब क्या कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर. 1 minute. All through the night, Lencho thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो सिर्फ एक होप के बारे में सोचता रहा. वो क्या थी? The help of God, whose eyes has been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Okay. So, as he had been instructed, वो instruct किया गया था उसे that see everything, even what is in deep conscience. Conscience means an inner sense of right and wrong, कि क्या सही है क्या गलत है, जो अंदर से ही एक आती है कि मन जो कहता है कि यार ये सही है और that's wrong, that the things of conscience. Lencho was an ox of a man. Lencho एक ox था. Ox क्या होता है? जो सारा दिन इतना काम करता रहता है. Working like an animal in the fields, वो एक जानवर की तरह काम करता रहता था, ठीक है, अपने खेत में. But still he knew how to write. पर तब भी उसको क्या पता है कि कैसे लिखा जाता है, वरना most of the farmers are illiterate. Which the following Sunday at daybreak क्या होता है, जो दिन का समय में वो मिलता है ब्रेक. He began to write a letter which he himself would carry to the town. उसने एक लेटर लिखा जो वो खुद कहाँ लेके गया, टाउन लेके गया. And placed in a mail. और उसने एक मेल में, मतलब एक जो पोस्ट ऑफिस का आगे एक वो होता है डिब्बा, तो मेल डालते उसमें डाला. It was nothing less than a letter to God. वो एक लेटर टू गॉड से कम नहीं था. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go of hunger this year. उसने क्या लिखा, गॉड अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं और मेरी पूरी फैमिली मर जाएंगे हंगर से, या फिर मरेंगे नहीं तो मतलब पूरे साल भूखे रहेंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again. मुझे 100 pesos चाहिए अपनी फील्ड को फिर से सो कराने के लिए. And to live until the crops comes. और जीने के लिए भी, मतलब जब तक क्रॉप उगेगी तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, उससे उतने समय तक मुझे कुछ खाने के लिए भी तो चाहिए, अपने घर को चलाने के लिए भी तो कुछ पैसे चाहिए. एंड अगेन टू लिव until the crops come because the hailstorm के बाद वो स्टॉप हो गया, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं. God knows everything about everyone because we all are his children. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and he wrote to God. क्या लिखा उसने? To God लिखा है एनवेलप पे. On the envelope and put the letter inside. उसने फिर एनवेलप के अंदर लेटर डाल दिया. And still troubled, और वो भी परेशान है. Went to the town. टाउन पे गया. At the post office he placed a stamp. उसने एक पोस्ट ऑफिस पे से स्टैम्प लिया और उस पर लगाया. ऑन द लेटर पे स्टैम्प लगाया एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स. मेल बॉक्स क्या होता है, जो पोस्ट ऑफिस के बाहर एक बॉक्स होता है जिसमें सारी मेल्स, सारे लेटर्स, सारी जो भी चीज़ें हैं वो सब हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं. One of the employees who was the postman and also had at the post office, उनमें से एक एम्प्लॉयज़ जो एक पोस्टमैन थे और हेल्प इन पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस. वो अपने बॉस के पास गए. लाफिंग हार्डली एंड शॉर्ट हिम द लेटर टू गॉड. वो जो पोस्टमैन था वो हंसते हंसते हा करते करते कि हाँ बहुत दिल से हंस रहा था कि भाई ये लिखा गया है टू गॉड. गॉड का एड्रेस क्या है, कोई जानते हैं क्या गॉड का एड्रेस? मंदिर ही जानते हैं हम, चर्च जानते हैं, गुरुद्वारा जानते हैं, मस्जिद जानते हैं, ठीक है. So, shortly later, never in his career as a postman, उसने अपने पूरे करियर में अभी तक पोस्टमैन के ऐसा कभी एड्रेस देखा ही नहीं कि टू गॉड एड्रेस हो, ठीक है. द पोस्टमास्टर ज़्यादा फैट था, एमिएबल मतलब फ्रेंडली था, प्लीजेंट था, फेलो इंसान था. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, बट एकदम से वो क्या हो गया, सीरियस हो गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, ऐसे डेस्क पर टैप करते हैं. स्टॉप कमेंटेड, क्या बोला उसने? व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट हिज लेटर.
वो क्या कह रहा है कि क्या विश्वास है, मैं विश करता हूँ डेट आई हैड द फेथ, मेरे पास वैसा फेथ हो जिस मैन के पास है जो जिसने लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान की कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो राइटर का वो फेथ हिलाना नहीं चाहता था। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर एक आइडिया के साथ आया। आंसर द लेटर बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट टू आंसर इट इफ इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल। तो उसने क्या किया, आंसर किया लेटर को, बट व्हेन जब उसने उसको खोला तो इट वॉज द एविडेंट, ये क्या था, एक एविडेंस था दैट टू आंसर, कि उसको क्या चाहिए, उसका आंसर रिप्लाई देने के लिए नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, कुछ अच्छी चीज़ देने के लिए, मतलब उसकी हेल्प करने के लिए उसको क्या चाहिए था वो देखा। इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, पर वो अपने रेजोल्यूशन पे खड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज से खुद gave the part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। उसके एम्प्लॉयज़ फ्रेंड्स वो खुद अपने सैलरी का पार्ट दे रहे हैं और ये सब क्या करना चाह रहे हैं, एक एक्ट ऑफ चैरिटी करना चाह रहे हैं, लेंचो की हेल्प करना चाह रहे हैं जिससे कि लेंचो भूखा ना रहे और उसका घर चल सके। सो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। तो वो पूरे 100 पेसोस तो नहीं कर पाया, पर हाफ से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 70 पेसोस उसने वहाँ पे उसको भेजे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने एक एनवेलप में पैसे डाले। एड्रेस क्या किया उसने, एड्रेस किया उसने एड्रेस किया लेंचो। विद द लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, पर ये जो मैंने आपको बताया था गॉड, फ्रॉम गॉड, ये सिग्नेचर था, ऐसे सिग्नेचर करके उसने भेजा था। कंटेनिंग द ओनली सिंगल वर्ड ऑफ सिग्नेचर गॉड, उस पर सिर्फ एक वर्ड था सिग्नेचर का एनवेलप पे, गॉड, क्योंकि उसने तो लेटर गॉड को लिखा था, ठीक है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of the man who was performed a good deed, looked for on from his office। तो फॉलोइंग मतलब जैसे वो देखे आया था, उसके अगले संडे भी हो गया, थोड़ी जल्दी चला गया यूजुअली से, मतलब यूजुअली वो जिस टाइम पे जाता है उससे थोड़ा पहले चला गया पूछने की क्या उसके लिए लेटर आ गया कोर्ट से। इट वॉज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन जिसने उसका लेटर उठाया था उसने क्या किया, वो हिमसेल्फ हैंडेड द लेटर टू हिम, उसने खुद ही अपना लेटर उसको दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, और पोस्ट मास्टर ने क्या एक्सपीरियंस किया, तो कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस किया ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, वो अपने आप में खुश हो रहा था कि हाँ उसने कोई अच्छा काम किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से उसको देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने कोई भी सरप्राइज शो नहीं किया। ही वॉज नॉर्मल, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वैसे देखने में नहीं पड़ा, अभी जब आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा उसको कितना फ़र्क पड़ा। ओके, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसे उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे काउंट करने लगा, भाई कितने पैसे हैं, फिर क्या देखा, गॉड कुड नॉट हैव मेड द मिस्टेक, भगवान तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो मना कर सकते कि लेंचो ने जो मांगा था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर द पेपर एंड इंक, वो विंडो पे जैसे ऐसे होता है, ये डेस्क होती है, यहाँ पर हम बैठे होते हैं,
यहाँ पे वो गया पेपर और इंक, ठीक है। तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। जो पब्लिक की राइटिंग टेबल होती है इधर, वहाँ पे वो लिखने लग गया खड़ा होकर। वहाँ पे वो लिखने लग गया। To write, with much wrinkling of his brow. Wrinkling मतलब देखो, मैं करके दिखाऊंगी आपको, देखना, मतलब हिलाना, wrinkle करना, ऊपर नीचे ऐसे हिलाना। मतलब गुस्सा था, ऐसे लगा था। Caused by the effort he had to make to express his ideas. उस एफर्ट जो उसने इतना एफर्ट डाले थे और उससे जो इफेक्ट आया था, वो अपने आइडियाज़ उसमें डाल रहा था, ठीक है। उसने अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। जब उसने फिनिश किया वापस विंडो पे गया, वहाँ से एक स्टैम्प मांगी। वहाँ से क्या मांगी? एक स्टैम्प मांगी, विच ही लिक्ड, जीप से लिखी, एंड देन अफेक्टेड, मतलब उस पर फिक्स कर दी। किस पे? एनवेलप पे, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ब्लो ऑफ हिज फिस्ट मतलब ऐसे, ठीक है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जैसे ही उसने वो लेटर मेल बॉक्स में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्ट मास्टर भागा भागा गया और उस जो मेल बॉक्स में वो लेटर था उसको निकाला, ठीक है। इट सेड, लेटर में क्या लिखा था? गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड यू, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 pesos रीच मी। उसमें से सिर्फ कितने मिले? 70 pesos। सेंड मी द रेस्ट, कितने भेजो? रेस्ट 30 pesos, बट डोंट सेंड इट टू don't send it to me through the mail because the post office employees, the post office के employees हैं, वो क्या है? bunch of crooks, written by Lencho। so इससे मुझे पता चला कि जो मतलब जिसने हेल्प की वो ही उसका गुनहगार बन गया कि उसी ने चोरी करी। तो यही तो आयरनी है, और ये आपके एग्ज़ाम में 100% एपिसोड लिखने को आएगी। सो आई ओनली विश दैट प्लीज़ डू दिस चैप्टर करेक्टली। अगर आपको मेरे में कुछ भी कमी दिखती हो, जैसे मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको सही ना लगे, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसमें आप मेरे को मतलब टैग करके या कुछ भी करके बताइए कि मैम मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। मैं आपको फिर से ये इसी वीडियो का पार्ट दूसरा लाऊंगी और मैं आपको एक बार फिर से चैप्टर समझाऊंगी, और जो भी क्वेरीज होंगे हम वो करेंगे। सो एंड वन मोर थिंग आई फॉरगेट टू टेल यू that this story is written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes. Okay, and you have to learn these names as it can come in the syllabus. Exam. So I only think that you all got this chapter, and the summary I gave you, that was also understood by you. So thank you guys for seeing this video. Like, subscribe and share my channel, and I know you all are with me always. Thank you for your love and care. Bye.